میرے چاچو مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھے اور میں اپنے امی اور ابو سے بھی زیادہ ان کے بے حد قریب تھی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہوتی گئی اور میری اور میرے چاچو کی دوستی بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس وقت میں نے نئی نئی جوانی میں قدم رکھا تھا اور اپنی سہیلیوں سے مرد اور عورت کے بیچ کے رشتے کے بارے میں نئی نئی باتیں سنی تھیں۔ چاچو سے دوستی اتنی گہری تھی، میں اپنے چاچو سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی اور مجھے چاچو سے باتیں کر کے بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ پھر ایک رات امی ابو گھر پر نہیں تھے تو چاچو کے سر میں بہت زیادہ درد تھا۔ چاچو نے مجھے کہا، چاندنی ذرا چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ میں نے جلدی سے چائے بنائی اور چاچو کے کمرے میں چلی گئی۔ چاچو نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ میں چائے ٹیبل پر رکھ کر واپس جانے لگی تھی کہ چاچو نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے، آج گھر پر کوئی نہیں ہے، تمہیں اپنے کمرے میں ڈر لگے گا، اس لیے آج میرے پاس لیٹ جاؤ، تمہیں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ چاچو نے مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا۔ میں چاچو کے بستر پر لیٹ گئی۔ چاچو مجھے ویڈیو دکھانے لگے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے اندر اچانک سے بے چینی ہونے لگی اور پھر چاچو مجھ سے بولے، چلو ہم دونوں بھی مل کر ایسے ہی۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میرا نام چاندنی ہے اور میری عمر 15 سال ہے۔ ابھی میں نے 10th کلاس پاس کی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے ابو میرے پڑھائی کے خلاف تھے۔ میں نے امی اور چاچو سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ دونوں پلیز میری مدد کرو اور میرے ابو کو راضی کرو۔ امی نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، لیکن ابو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کالج میں پڑھائی کم اور عاشقی زیادہ چلتی ہے۔ تبھی میرے چاچو نے ابو کو سمجھایا اور ایک طرف سے میری گارنٹی لے لی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی اور صرف پڑھائی کروں گی۔ تب جا کر ابو میرے کالج جانے کے لیے مان گئے اور چاچو سے کہا کہ آج سے چاندنی کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کام کیا جس سے اس گھر اور خاندان کی عزت کو کوئی داغ لگا تو چاندنی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ چاچو نے ابو سے کہا کہ بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، میں چاندنی کی ہر حرکت پر نظر رکھ لوں گا۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ چاچو کے دل میں کیا ہے اور وہ میری اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے چاچو سے دوستی اتنی آگے تک چلی جائے گی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں چاچو نے میرے ساتھ جا کر میرے کالج میں داخلہ کروا دیا۔ پہلے پہلے تو میں خوب دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی اور کالج میں کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ جو بھی کالج میں ہوتا وہ رات کو میں چاچو کو گھر آ کر بتا دیتی۔ چاچو بھی میرے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے لگے تھے اور مجھے لگتا وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میری چاچی گاؤں میں رہتی تھی اور چاچو نوکری کے سلسلے میں ہمارے گھر پر ہی رہتے تھے۔ پھر کالج میں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، جس کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد میری زندگی بدلنے لگی، کیونکہ اس سہیلی نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے ایک دن اپنے منگیتر سے ملوایا بھی تھا۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا ہماری اب شادی طے ہو چکی ہے، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ہم دونوں میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سہیلی سے وہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتی جسے جاننے کی شاید میری ابھی عمر بھی نہیں تھی، یا پھر میری عمر ایسی تھی کہ میں یہ سب باتیں جان کر آسانی سے غلط راستے پر چلی جاتی، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ مجھے بھی ان باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ میری کسی لڑکے سے تو دوستی نہیں تھی، اس لیے میں جب بھی ایسی باتیں سوچتی تو میرے دماغ میں خود بخود چاچو کا خیال آ جاتا، اور پھر میں اپنے دماغ کو جھٹک دیتی اور خود کو کہتی کہ چاندنی یہ سب کیا ہے یار، یہ کیا بیہودہ باتیں سوچ رہی ہو، وہ میرے چاچو ہیں۔ لیکن پھر چاچو کی باتیں اور ان کا رویہ بھی میری اس سوچ کو بڑھاوا دیتا رہتا تھا، لیکن چاچو کے دل کی باتیں میں ابھی تک جان نہیں پائی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا وہ بھی شاید میرے بارے میں یہی سب سوچتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی ان کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ سخت ہو جاتا تھا اور وہ مجھے یاد دلا دیتے تھے کہ تمہارے ابو کتنے سخت ہیں
और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो चांदनी? वो भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वो चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हों। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती हैं, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चाचू के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो चांदनी, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाज़े तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वो वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर में मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती भी थी। तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर से मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और मैं इंतज़ार करते करते पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई।
और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी, जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर ये क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूँगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वो काफ़ी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ, और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। वो इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक आ गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे इसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहाँ भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वो वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली हैं। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, वो कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है, उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने ये सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वो बोले, तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लॉन्च में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फ़िलहाल कुछ कहने को जा रहे थे।
तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और ख़ुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा, चांदनी, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने ये कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूँगा। अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी ख़त्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी, तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर ही लिटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात चाचू ने मेरे साथ जो सल्लूक किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो काफ़ी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोला, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी हुई आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से चांदनी बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और धमका ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत ख़राब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग। चांदनी बेटी, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थीं तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज़ हो जाती, फिर तुम मुझसे बातें शेयर न करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज़ हों, ना कि बुरे कामों में। मैंने चाचू से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसी लड़कियां और लड़कों के बुरे कामों में अब बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाज़त नहीं देते। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज़ सिखानी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत की जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके और सही और गलत में बच्चों को फ़र्क सिखाया जाए। उनके हर कदम पर नज़र रखी जाए ताकि चांदनी की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज़्ज़त महफूज रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔